ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କହିପାରିବ କି କିପରି ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଏବଂ ଲବଣ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରକ? ବା କହିପାରିବ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଏବଂ ଲବଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ବା ତୁମେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ମନରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା? ତ ଚାଲ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ବି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଏବଂ ଲବଣ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଅମ୍ଳ କ'ଣ? ଅମ୍ଳ ହେଲା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ ଏସିଡ୍ ବୋଲି କହୁ। ଅମ୍ଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ, ତେନ୍ତୁଳି, କଞ୍ଚା କମଳା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି କହିଲ କ୍ଷାରକ କ'ଣ? କ୍ଷାରକ ହେଲା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇଲେ ଆମ ପାଟିକୁ ଖାରିଆ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ଷାରକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେକିଂ ସୋଡା, ଚୂନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି, ଇନୋ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ଲବଣ କ'ଣ? ଲବଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତ ସେ କ'ଣ ଦବ ନା ଲବଣ। ଲବଣ ପାଟିକୁ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଇବା ଲୁଣ ବା ଯାହାକୁ NaCl ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦେହର ଝାଳ, ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଏବଂ ଲବଣ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଥିବ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଧର ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇଛ। ସେଠି ଥିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ବା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ସବୁ ଖାଇଥିବ। ଦେନ୍ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ତୁମେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫିଲ୍ କଲ। ଏହି ପେନ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଅମ୍ଳଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଏସିଡିଟି ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ଏହି ଏସିଡିଟିରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ରୁହ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅପସନ୍ ଦଉଛି ଏସିଡିଟି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିନେଗାର। ତ ତୁମେମାନେ କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବ? କ'ଣ ହେଲା ମନରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା କି ଆମ ବଡିରେ ତ ଅଲରେଡି ଅମ୍ଳଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଏସିଡିଟି ହେଇଛି, ଫେରେ ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ୍ ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଭାବୁଛ। କେବେ ବି ଏସିଡିଟି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ଇନଟେକ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହା ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଫେରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦେନ୍ ଏସିଡିଟି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କି ପିଇଲେ ଏସିଡିଟି ଭଲ ହବ? ତାର ଗୋଟେ ଉପଚାର ହେଲା କ୍ଷାରକ ବା ବେସ୍ ଖାଇକି, ଯେମିତି କି ଖାଇବା ସୋଡା ଏବଂ ଇନୋ। ଖାଇବା ସୋଡା ଇନଟେକ୍ କଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଏସିଡିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରେ। ଖାଲି କ୍ଷାରକ ନୁହେଁ, ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାରକକୁ ପ୍ରଶମନ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହିତ ବା ନଲିଫାଏ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳ ଅଛି ବା ଏସିଡ୍ ଅଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣଟା କମେଇବା ଦରକାର। ତ ତୁମେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଷାରକ ବା ବେସ୍ ଆଡ୍ କରିବ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି କ୍ଷାରକ ବା ବେସ୍ ସେମିତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତା ପରିମାଣଟିକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶମନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶମନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଲବଣ ବା ସଲ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ, ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷାରକ ଏଇ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ କି ଲେମ୍ବୁ, ତେନ୍ତୁଳି ବା ସାବୁନ ପାଣି ବା ଖାଇବା ସୋଡାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିଦେବ କି ନାହିଁ କୋଉଟା ଅମ୍ଳ ବା କୋଉଟା କ୍ଷାରକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ
आम शरीर जलिଯିव। तो यही एसिड गुड़िक आम शरीर को हानि पहुंचाती। खाली एसिड गुड़ा ही स्ट्रंग न थांती, सेहीपरि किछिटा क्षारक बा बेस भी एमिति अछंती जहा बहुत बहुत स्ट्रंग थाए एवं आम शरीर को जळै दै थाए। सेही गुड़ा को आमे चाखी परिबा नहीं। तो एमिति रे तुमे देख, तुमे जानि परिबो कि कोटा अम्ल बा कोटा क्षारक बोली नाही। तेणु कोटा अम्ल एवं कोटा क्षारक जानिबा पई किछिटा सूचक व्यवहार करिथाउ, जहाकू इंडिकेटर बोली कुहा जाए। एमिति रे तो एगुड़ा आमे चाखी परिबा नहीं। तेणु इंडिकेटर साहाय्य रे आमे जानि परिबा जे कोटा अम्ल बा कोटा क्षारक बोली। तो तुमे माने सूचक बा इंडिकेटर माने कोन बुझिलो ना, जेउ पदार्थ द्वारा आमको जाना पड़िबो कि कोटा अम्ल एवं कोटा क्षारक बोली। इंडिकेटर को अम्ल क्षारक सूचक बोली मध्य कुहा जाए। अच्छा, तुमे माने पूर्व श्रेणी रे लिटमस पेपर विषय तो एटलिस्ट किछि जानि थिबो। तो एबे चल एही लिटमस पेपर विषय रे टिके विस्तार भाबरे जानिबा। लिटमस पेपर दीटा प्रकारर अछि। गोटे हला लाल लिटमस पेपर एवं आ गोटे होछि नील लिटमस पेपर। अच्छा, मु तुम मानकु जदि गोटे जिंसटे देबी आ तुम मानकु कहिबी कि एटा परीक्षा करिके कुह कि कोटा अम्ल एवं क्षारक बोली, देन तुमे माने कोन करिवो ना दुईटा जक लिटमस पेपर को बुड़ाई दबो। देन जदि देखिबो कि नील लिटमस पेपर टी लाल हेई जाउची, ताहले तमे कोन बुझिलो ना एही जिंसटी हेउची अम्ल बा एसिड। सेही परी जदि लाल लिटमस पेपर टी नील रे परिवर्तन हेई जाउची, ताहले कोन बुझिबो ना एही जिंसटी होची क्षारक बा बेस। तेणु लिटमस पेपर को आमे कोन बोली कहितो ना अम्ल क्षारक सूचक बा इंडिकेटर। एमिति खाली गोटे सूचक नहीं, आहुरी मध्य बहुत गुड़िए सूचक अछंती। जेतिके भी सूचक अछंती सेमानक भितरु किछिटा प्राकृतिक सूचक थांती जे कि प्रकृति रु सृष्टि होई थांती, सेही बळी आउ किछि कृत्रिम सूचक थांती जाहाकू मनीष विज्ञान काररे सृष्टि करि थांती एवं सेमानकु कोन कुआ जाय ना सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोली कुहा जाय। प्राकृतिक सूचकर उदाहरण कोन कोन हेबो ना लिटमस पेपर, हळदी, पियाज, मंदार फूल एवं इत्यादि, जहा फଳରେ आमे अम्ल क्षारक कोटा जानि परिबा। सेमिति कृत्रिम सूचकर उदाहरण कोन ना यार दीटा टाइप रो उदाहरण अछि। गोटे हला फेनोल्फथालीन एवं आउ गोटे हेउछि मिथाइल ऑरेंज। सेही बळी कोन ना हळदी मध्य हेउछि एक प्राकृतिक सूचक। तो कोन करिबा ना तमे जदि हळदी पानी नब एवं साबुन पानी जहा कि एक क्षार एही दुई को मिसाई दबो, ताहले कोन हबो ना पानी टी लाल रंग रे परिणत हेई जिवो। तो आमे हळदी एक प्रकार रो सूचक बोली जानिले, कारण आमे जानि परिले जे हळदी जेतेबेले पानी रे मिसी साबुन पानी रे मिसिला तो पानी टी कोन हला ना लाल रंग रे परिणत हेई गला। मु तुमको गोटे उदाहरण देखि बुझौछि। देख, धर तुमे गोटे धला ड्रेस बा लुगा पिंदी के रोसई करूछ, तो कोन हबो ना रोसई करू करू तरकारी टी तुम धला ड्रेस ऊपर थर पड़ी गला। देन हळदिया दाग लागि जिवो, ताकू फेरे कोन करिवो ना साबुन पानी रे धोइबो। धोई सारला परे कोन देखिबो ना लोहित बादामी बा ब्राउन कलर दाग लागि जाइछि। फेरे से ड्रेस को आउ थरे पानी रे जतबेले भलसे धोइले कोन हबो ना से दागटी पूरा छाडी जिवो। तो एबे तो तुमे माने जानिलो लिटमस पेपर विषय रे। तो एबे चल आमे जानिबा लिटमस द्रवण विषय रे। एही लिटमस द्रवणटी केहु उद्भिद रु आछि ना थाइलोफाइटा जातीय शैवालरू, जहाकू लाइकेन बोली कुहा जाय। देन ताकू मनीष तयारी करिकी कोन करंती ना सूचक भाबरे व्यवहार करंती। लिटमस द्रवणर कलर हेउछि नील लोहित बा पर्पल कलर। एही द्रवणटी को जदि आमे अम्ल रे पकाइबा तो कोन हबो ना सेही पर्पल कलर टी को रंग रे परिणत हबो ना लाल रंग रे। ठीक सेही परी लिटमस द्रवण को क्षार रे पकेबा जदि तो कोन हबो ना नील लोहित रंग बा पर्पल कलर टी चेंज हेकी नील होई जिवो। देखो पिला माने, तुमे माने मन देकी एटा बुझ, नहले बहुत कंफ्यूज हेई जिवो। लिटमस पेपर आ लिटमस द्रवण दुईटा जाक अलग अलग जिंस। लिटमस पेपर दीटा टाइप्स थाए, गोटे हला नील एवं आ गोटे हला लाल। किंतु लिटमस द्रवण हेउची गोटे प्रकारर जलीय जिंस बा गोटे प्रकारर लिक्विड टाइप। ताहा कोन थाए ना नील लोहित रंगर बा पर्पल कलर थाए। एबे बुझिलो तो? जदि न बुझी परिबो आ कोठी भी जदि डाउट आसुची तो तुमे माने कमेंट सेक्शन रे जणे परिबो। तो एबे देख, किछिटा प्राकृतिक सूचक गुड़िक हैला लाल बंधाकोबी पत्र, हळदी एवं केतेक फूल जेमिति कि हाइड्रेंजिया, पेटुनिया और जेरानियम। तो एमाने सबु हेले प्राकृतिक सूचक। तो पिला माने एबे चल आमे जानिबा मिथाइल ऑरेंज एवं फेनोल्फथालीन द्वारा आमे किपरि चिन्हिबा अम्ल एवं क्षार कोउटा। फर्स्ट चल आमे जानिबा मिथाइल ऑरेंज कोन। मिथाइल ऑरेंज टी देखिबाकू कमला रंगर बा ऑरेंज कलर,
ଯେତେବେଳେ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ପକେଇବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜର କଲରଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଆମେ କ୍ଷାରରେ ପକେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ରଙ୍ଗଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବା ୟେଲୋ କଲରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ରଖ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲ କିପରି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର କୋଉଟା। ସେହିଭଳି ଫେନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା କି କୋଉଟା କ୍ଷାର ଏବଂ କୋଉଟା ଅମ୍ଳ ବୋଲି। ଫିନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ଦ୍ରବଣ। ପାଣିର ଯେମିତି କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଫେନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବା ଯାହାକୁ କଲରଲେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯଦି ଫେନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍କୁ କ୍ଷାରରେ ପକାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କ୍ଷାରର ସଲ୍ୟୁସନଟି ଏକଦମ ଲାଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଫେନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍କୁ ଅମ୍ଳରେ ପକେଇବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଖାଲି ଫେନୋଲଫ୍ଥାଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ଷାରକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଅମ୍ଳକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଟା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କୋଉଟା କ୍ଷାର ବୋଲି। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ କେମିତି ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର କୋଉଟା। ତ ଏହି ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଥିବା କିଛିଟା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବି ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି HCl। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି H2SO4। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି HNO3। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା CH3COOH ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମ୍ଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା NaOH। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି CaOH2। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି KOH। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି MgOH2 ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଯାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି NH4OH। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ କୋଉ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାର ବୋଲି। ତୁମେ ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା Hରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା H+ ଆୟନ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦେଖ, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ OH ଲାଗିଛି କାରଣ ସେମାନେ OH- ଆୟନ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ସରଳରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷାରକର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଯୋଉ କେମିକାଲ ନେମ୍ର ପଛପଟେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିବ ଯେ କି ଏଇଟା କ୍ଷାର ବୋଲି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଅ। ସେଥିରେ କିଛି ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ମିଶାଅ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଥିରୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା। ଦେଖିବ ଯେ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ଫୋଟକା ନିକଟକୁ ନେବା। ଏବେ ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଧାତୁଟି ମାନେ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ମିଶି ଏକ ଯୌଗିକ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଲବଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଅମ୍ଳ ଓ ଧାତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବେ ତାହେଲେ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଚଲ ଇକ୍ୱେସନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଧାତୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏବେ ଚାଲ
आउ एक एग्जांपल द्वारा बुझिबा कि किपरि अम्ल और क्षारक धातु सह रासायनिक प्रतिक्रिया करूछंती। गोटे परीक्षा नळी रे किछि जिंक दाना नियो, सेतिरे 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसाओ एवं परीक्षा नळीटिकु गरम कर। एबे देखुथिबो जे एक प्रकार गैस निर्गत हेउछि। एही गैस को पुनर्बार साबुन पानी रे प्रवेश कराइबा। एबे बाहरुथिबा गैस को एक ज्वलंत मोहम्बती मध्यकु नेई गैस रो धर्म परीक्षा करिबा। देखिबो जे मोहम्बतीटी जोरे जळुछि एवं शब्द करुछि। तो एथुरु आमे कोन जानिले कि हाइड्रोजन गैस सृष्टि हेउछि। एही प्रतिक्रियाटिकु निम्नलिखित भाबरे आमे केमिति लेखिबा चलो देखिबा। 2NaOH बा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn बा जिंक कोन दोछि ना Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 बा हाइड्रोजन। अच्छा एबे तो आमे जानी गले किपरि अम्ल और क्षारक धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि। तो एबे चलो आमे देखिबा धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि। तो सर्वप्रथमे दीटा परीक्षा नळी ए और बी नबा। परीक्षा नळी ए रे प्राय 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट बा Na2CO3 नबा एवं बी रे 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा NaHCO3 नबा। प्रति परीक्षा नळी रे प्राय 2 मिलीलीटर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसेबा। एबे सेही द्रवणरु आमे देखिबा जे एक गैस निर्गत हेउछि। सेही गैस को एबे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्रवण बा चूर्ण पानी रे प्रवेश कराइबा। एबे परीक्षा नळी ए पई समीकरणटी कोन हबो चलो देखिबा ना Na2CO3 बा सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए दुहे मिसी कोन दोउछंती ना 2NaCl बा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बा पानी प्लस CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड। सेही परी परीक्षा नळी बी पई समीकरणटी कोन हबो चलो देखिबा ना NaHCO3 बा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए दुही मिसी कोन दोउछंती ना NaCl बा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बा पानी प्लस CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड। निर्गत हेउथबा कार्बन डाइऑक्साइड को चूर्ण पानी मध्य प्रवेश कराइले धला कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप सृष्टि होइथाय। एहार इक्वेशन टी कोन हेउछि चलो देखिबा CaOH2 बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड दुहे मिसी कोन दोउछंती ना CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बा पानी। जदि हमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराउछे तो इक्वेशन टी किपरि हेबो ना CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 कोन दोउछंती ना CaHCO3 होल 2। चूर्ण पत्थर बा लाइमस्टोन चॉक एवं मार्बल ए सबु गुड़िक हेउछि कैल्शियम कार्बोनेट रो रूप। धातव कार्बोनेट बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल कोन दोउछंती लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। एबे बुझिबास अम्ल और क्षारक मिसी गले किपरि प्रतिक्रिया करंती। गोटे परीक्षा नळी रे प्राय 2 मिलीलीटर लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड नियो, सेथिरे 2 बुंदा फेनोल्फथालीन द्रवण मिसा। एहार वर्ण कोन हैला देखिबो एहा गोलापी रंगर हेइ जाउछि। एथिरे आमे जदि गोटे अम्ल जहाकि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो बुंदा पकाइबा एबे एही मिश्रण रो वर्ण रे परिवर्तन घटिबो। वर्तमान सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाकि एक क्षार याकु द्रवण रे मिसेबा। एबे देखिबो जे कि फेनोल्फथालीन रो गोलापी वर्णटी पुणी थरे फेरी आसुछि। केबे भाबिछ एमिति काहेकि हुए? कारण एही परीक्षा रे क्षारकर प्रभाव को गोटे अम्ल प्रतिहित बा नलिफाई करूछे एवं गोटे अम्लर प्रभाव को मध्य गोटे क्षारक निष्फल करूछि। एबे चलो यार रासायनिक समीकरणटी कोन हला देखिबा NaOH बा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुहे मिसी कोन दोउचंती ना NaCl बा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बा जल। गोटे अम्ल और गोटे क्षारक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण एवं जल उत्पन्न हुए। एही रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण बा न्यूट्रलाइजेशन बोली कुहा जाए। एबे चलो में जानिबा धातव ऑक्साइड रो अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया किपरि घटुछि। तो चलो देखिबा गोटे बिकर रे अल्प परिमाण रे कॉपर ऑक्साइड नियो,
एवं धीरे धीरे लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को घांटु दिबा अवस्था रे मिसाओ। एबे देखिबो जे द्रवणटी नील सबुज रंगर हेई जाउछे एवं कपर ऑक्साइड द्रवीभूत हेई जाउछे। एही प्रक्रिया रे कपर क्लोराइड उत्पन्न होथिबारु द्रवणटीर वर्ण नील सबुज हेई जाउछे। एहाकू रासायनिक समीकरण रे लेखिले किपरि हेबो चले देखिबा। CuO बा धातव ऑक्साइड प्लस 2HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँकि एक अम्ल दुहे मिसी कौन दौरान ना CuCl2 बा कपर क्लोराइड जहाँकि एक लवण प्लस H2O एवं जल। धातव ऑक्साइड विषय तो जानिले। एबे अधातव ऑक्साइड रो क्षारक सहित किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची चल जानिबा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक एवं यह कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल उत्पन्न हुए। एहार समीकरणटी कौन हम चल देखा। CaOH2 बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड दुहे मिसी कौन दौरान ना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जहाँकि एक लवण प्लस H2O एवं जल। एही रासायनिक प्रतिक्रियाटी क्षारक और अम्ल मध्य घटुवा रासायनिक प्रतिक्रिया सहित समान। तेणु एथिरु आमे जानिले जे अधातव ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति अम्लीय। एबे बुझिबा चल समस्त अम्ल और समस्त क्षारक मध्य कौन समानता अछि। आमे जेते भी परीक्षा कले आमे देखिले कि अम्ल गुड़िक धातु सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस सृष्टि करती। तेणु हाइड्रोजन समस्त अम्ल रे अछि कि नाही। तो एबे चलो याको परीक्षा करिके देखिबा। प्रथमे ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि द्रवण नियो। गोटे ठिपी आनी दुईटा कंटा लगा एवं एक 100 मिलीलीटर बीकर मध्य ताकू रख। तापरे गोटे बल्ब और गोटे स्विच मध्य देई कंटा दुईटी को 6 वोल्ट बैटरी रो दुई विपरीत अग्र सहित संजोग कर। एबे सेही बीकर भितर को किछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ढाल एवं स्विच टी को दबाई विद्युत प्रवाह चालू कर। एबे लघु सल्फ्यूरिक एसिड नहीं एही काम को पुनर्बार कर। पुणी थरे ग्लूकोज और अल्कोहल द्रवण अलग अलग भाବରେ नहीं एही परीक्षा को पुनर्बार कर। तुमे कौन देखुच पिला माने समस्त क्षेत्र रे बल्ब टी जळुची कि नाही। अम्ल गुड़िक माने लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लघु सल्फ्यूरिक एसिड क्षेत्र रे बल्ब टी जळिबो। किंतु तुमे देखिबो जे ग्लूकोज और अल्कोहल द्रवण क्षेत्र रे बल्ब टी जळिबो नाही। एमिति काहे कि होउची कारण ग्लूकोज और अल्कोहल द्रवण विद्युत परिवहन करती नहीं। बल्ब रो जळिबाटी सूचाई दिए कि द्रवण मध्य विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउछि। आयन गुड़िक द्वारा द्रवण मध्य विद्युत स्रोत परिवहन होइथाय। अम्ल गुड़िकरे H+ कैटायन अछि। तेणु एथिरु जणा पडुछि जे अम्ल गुड़िक द्रवण रे हाइड्रोजन आयन बा H+ उत्पन्न करंती। एहा ही अम्लर अम्लीय गुण पई दायी। तो एबे चल आमे जानिबा जलीय द्रवण रे अम्ल और क्षारकर कौन घटी थाए। एथिपाई एक परीक्षा करने को पड़िबो। प्रथमे 1 ग्राम कठिन सोडियम क्लोराइड गोटे परिष्कार परीक्षा नली रे नियो। परीक्षा नली रो मुहरे एक कर्क लगाओ। सेही कर्क मध्य रे एक निर्गम नली पुराओ। किछि गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड परीक्षा नली रे मिसाओ। एबे देखि पारुथिबो जे किछि गैस निर्गम नली बाटे बाहरी आसुछि। निर्गत हेउथबा गैस को क्रमान्वये सुखिला और आर्द्र नील लिटमस कागज रे परीक्षा कर। यार फॉर्मूलाटी कौन होउछि चला देखिबा ना NaCl बा सोडियम क्लोराइड प्लस गाढ़ H2SO4 जहा हेउछि सल्फ्यूरिक एसिड दुहे मिसी कौन दउछंती ना NaHSO4 जहा हैला सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एही परीक्षारु आमे जानिले कि शुष्क लिटमस कागज रे किछि भी परिवर्तन हुए नाही किंतु आर्द्र लिटमस कागज रे परिवर्तन घटुछि। एहा नीलरु नाली रंग रे परिवर्तन हेउछि। एही परिवर्तनटी काहीकि हैला कारण जल उपस्थिति रे HCl रु बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होई थाए। एहा को फार्मूला रे लिखिले कि परि हेबो ना HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O बा पानी दुहे मिसी कौन दउछंती ना H3O+ जहा हेउछि हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- जहा कि हेउछि क्लोरीन आयन। ए दुईटा जाक हेले आयन। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र भाबरे रही पारे नाही
किंतु यह जल अणु सहित मिसिकी थाए। तेणु हाइड्रोजन आयन को सर्वदा H+ और हाइड्रोनियम आयन को H3O+ भाबरे दर्शाई जाय थाए। यह को इक्वेशन रे लिखिले किपरि लेखा हबो ना H+ आयन प्लस H2O बा जल मिसी कोन दियंती ना H3O+ जहा हेउची हाइड्रोनियम आयन। एबे चलो देखिबा क्षारक गुड़िक जल रे द्रवीभूत हेले कोन घटी थाए। एही समीकरणटी को देख NaOH बा सोडियम हाइड्रोक्साइड जेतबेले जल रे मिसे से कोन दिए ना Na+ प्लस OH- आयन। सेही भली KOH बा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जेतबेले जल रे मिसुची सेतबेले कोन दोची ना K+ प्लस OH- आयन। सेही भली CaOH2 बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जेतबेले जल रे मिसुची कोन दोची ना Ca2+ आयन प्लस 2OH- आयन। एही समीकरण रे देखुतिबा क्षारक गुड़िक जल रे हाइड्रोक्साइड बा OH- आयन प्रदान करूछंती। जेउ क्षारक गुड़िक जल रे द्रवणीय सेही गुड़िकु क्षार बा अल्कली बोली कुहा जाए। वर्तमान आमे जानि गलु जे अम्ल गुड़िक जल रे H+ आयन और क्षारक गुड़िक OH- आयन सृष्टि करिथांती। तो एबे चलो गोटे परीक्षा करिके देखिबा। गोटे बिकर रे प्राय 10 मिलीलीटर जल नियो। सेथिरे किछि बुंदा गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड मिसाओ और बिकर टिकु घुराई के मिश्रण टिकु मिसाई दियो। बिकर रो तळ अंश को चलो एबे स्पर्श करिबा। कोन देखुछु पिला माने तापमात्रा रे किछि परिवर्तन घटुछि कि तुमे देखिबो जे बिकर टी गरम लागुछि। एमती काहे कि हेउछि कारण एहा एक ताप उत्पादी किंबा ताप शोषी प्रतिक्रिया। सेही परी आमे पुणी थरे सोडियम हाइड्रोक्साइड बटिका नै पुणी थरे ई परीक्षाटी को करि परिबा। प्रत्येक क्षेत्र रे तुमे देखिबो जे अम्ल बा सल्फ्यूरिक एसिड और क्षार बा सोडियम हाइड्रोक्साइड जल रे द्रवीभूत हेइ जाउछि। तो एही प्रक्रियाटी को आमे कोन कहिबा ना तापोत्पादी प्रक्रिया। तेणु एही गुडी को जल रे मिसेइबा बेले सावधानता अवलंबन करिबा निहाती आवश्यक। कारण गाढ़ अम्लटी जेतबेले जल रे मिसे सेतबेले कोन हुए ना मिश्रणटी रे प्रचुर ताप उत्पन्न हेइ जाए। सेतबेले कोन हुए ना मिश्रणटी एणे तेणे छिटकी पड़े एवं काच पात्रटी भांगी जाई पारे। जल रे अम्ल बा क्षारक मिसेइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H3O+ बा OH- आयन गुड़िकर गाढ़ता बा कंसंट्रेशन कमी जाए। एही प्रक्रिया को ही लघुकरण बा डाइल्यूशन बोली कुहा जाए। ता सह अम्ल बा क्षारक लघुकृत बा डाइल्यूटेड हेला बोली कुहा जिवो। अच्छा तो पिला माने ये तो थिला एही चैप्टर रो फर्स्ट पार्ट। मो पुणी आसीबे आउ गोटे वीडियो नै जोथिरे आमे एही चैप्टर रो सेकंड पार्ट विषय डिस्कशन करिबा जहा हेउछि अम्ल और क्षारकर द्रवण केते सबल एवं लवण विषय मध्ये टिके डिटेल्स रे पढ़िबा। तो पिला माने ये तो थिला आजिर चैप्टर विषय रे। मु आशा करूछि चैप्टर टी तुमे माने बहुत भलो भाबरे बुझी परिथिबो। आउ जोठी भी तुम मानकु डाउट आसुछि तुमे माने कमेंट सेक्शन रे हमकु जानि परिबो। आउ जदि वीडियोटी तुम मानकु भलो लागिछि ताहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करबाकू जमा भूलिबनी। तो आजि पई एतिकी। मु पुणी आसीबी आगामी वीडियो रे गोटे नुआ चैप्टर को नेकी। सेते पर्यंत समस्ते खुशी रे रुह एवं सुस्थ रुह।